all the participants on behalf of CA Vichar Manch and on my behalf CM Manmohan Khemka. There were some technical glitches which our program coordinator and moderator CA Varun Gupta is managing and setting. Already we have 106 participants log in. So, and the YouTube channel would be live. We have with us our panelist and speaker of this workshop for full day, for all 4 days, CA Sachin Mittal. He will be taking us through all the critical Excel advanced formulas, advanced utilities and features available in Excel. We also have with us CA Ravinder Jain ji, CA Subhash Kamboj ji, our General Secretary, and CA Ravinder Jain ji, our Executive Member, CA Varun Gupta ji, our moderator and convener of this Excel series. So I welcome you at the platform, web platform of CA Vichar Manch. It's really indeed a pleasure to have you all with us on this platform. The program would also be live, is already on live with our YouTube channel CA Vichar Manch. If any of your friends or colleagues are not able to join directly on the platform, you may request them to join our YouTube channel. It would be linked there and they will be able to see live. Varunji, can we start now? Varunji is setting up some technicalities. So Sachinji, are you ready with your presentation? Can we begin? Your voice is not coming. You may unmute your mic, please. Yes, we can begin now, sir. Thank you so much. We can begin. Sachinji, Yes. Varunji, can we begin the presentation now, sir? I think there is some 2-3 minutes, so we can wait till 7 o'clock and then we will begin. Participants must rest assured we will do the complete course, or otherwise we will cover it up in a separate session. Ravinderji, would you like to say something before Varunji? Are you Varunji, give us signal to start? Can you? Yes, sir. Yes, sir. We can start. Sachinji, I hope you are ready. Sachinji is ready. We can start now. Sachinji, please ensure there is no institute's logo in your presentation. Okay. Yes. Right, sir. Because this is a separate platform, so I request you institute का या किसी भी इस तरीके के government organization का कोई भी हम logo ना use करें. So Subhash ji is with us, our General Secretary. Subhash ji, अपना mic unmute कीजिए और few words बोलिए and then we will begin with Sachin ji. Good evening, everyone. After 10 days successful GST Back to Basic seminar, CA Vichar Manch, or with the efforts of our President and webinar committee chairman, Mr. Manpreet Singh Kapoor, they have planned a 4-day workshop on Excel to update the members in this COVID-19 session through this webinar series. So I thanks all the office bearer of CAVM for arranging such nice programs and webinars for updation of the members. Or thanks and welcome to all the participants and our professional members in this platform to get the knowledge updated. So I welcome you all in session. इसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे, जितने भी जरूरत की चीजें हैं. बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स आए हैं हमारे साथ जो हमें सब सिखाएंगे, कुछ सीखेंगे कुछ सिखाएंगे. तो इस शाम में आप सबका स्वागत है. Over to Manmohan ji. Thank you. Thank you, Subhash ji, and thanks once again all the participants for giving us your support by participating.
So I request Sachin ji now, without much of the other formalities, I request Sachin ji now to please begin his deliberations. The program is live on YouTube, so your other colleagues may watch it on YouTube also. Thank you, Manmohanji. So thank you for CA Vichaman for organizing this webinar. So our today's webinar is basically on Excel. Today's workshop is on Excel. So we will be learning how we can use the Excel to use in a more user-friendly way, and we can save some time. So currently we mostly use Excel as a data entry only. And but we can with the use of simple functions and features of Excel, we can automate so many processes which takes usually 2 hours or more than 2 hours. So in our today's session, so basically what we will be learning in our today's session, different dates. So what is the basically functions in Excel by which we can calculate the difference between dates, completed years, completed months. So calculation of completed years and months. What are the functions in Excel for calculating those years and months? Date after specified month. So how we can calculate date after a certain number of months. Calculation of working days. How we can calculate the working day based on the weekends and based on the list of holidays. Consolidation of multi-cell information in one cell. We mostly know about the concatenate function, but concatenate is the old function now. There are new function which came into picture, text join and concat. So we will learning what's the utility of both the functions and what are the differences between the both. Then converting values into meaning formation and statement using the text function. So text function can be used to change the data formats, date format, and using it to make a statement. Then we will, apart from filter, we would be learning about the advanced filter. Then there are some data cleansing function, trim, clean, how we can extract data from the single cell, right, left, mid, and how we can check the valid number of characters to check the validation of count, like for number CST. We are starting with our first function मेल called चली गई ना dated if. सबको? अच्छा. So basically, नहीं फोन के बजाय आप you will see ये कि भेज there दो are so पहले many सबसे functions in ना. Excel, हाँ. and any function you type Excel, हाँ it मैं gives भी you मेल डाले जा रहा हूँ. what मैं क्या डालूं सबको? input YouTube के value लिंक पे you have डालूं to या? use. So if I'll saying हाँ VLOOKUP function, हाँ so it is saying lookup value. हाँ भेज दीजिए. If I'm saying VLOOKUP, so it is saying me lookup value, table array, column index, and range lookup. If I'll say, if I wanted to use the summary function, so it's explaining me you have to define your range, criteria, and summary. But dated if function is not visible in Excel, but you can use this function in Excel. So if you will see, I typed the dated if, but I'm not able to see Excel is giving me that this function can be used in Excel. But you can use this Excel, just start the bracket. What input you have to do? You have to say start date, end date, and then you have to input some units. Basically, what are the units? You can say these are the units or these are the codes which Excel identifies while using the dated if function. So each code has its own criteria by which you can use the dated if function. ऐसे तो dated if में क्या होता है? Start date and end date. So these are the criteria and these are the units. So if I'm saying if I wanted to calculate the completed years between two dates, मेरे पास दो डेट है, मुझे उन दोनों के बीच की completed years निकालने हैं, ignoring days and months. So I'll use start dated if, start date, end date, and my unit will be Y. So if you'll see, it is giving me 1 month, 1 year. Start date, end date. What you will see, normally I'll say 1st April 17 to 31st 19 is my 2 years. So before using any Excel function,
you have to understand the logic. When a particular function works and what output it gives. So when we are using the dated if function, it excludes the and date while calculation. So if I am saying कि it is giving me completed years, it is giving me completed years between 1st April 17 to 30th March 19. तो इसमें में हुए एक साल, दो साल में मेरा एक दिन कम है, तो it is giving me only 1 year. What I can do, I can simply add 1 day in my end date. Next move. So next comes to completed months. Similarly, unit will change. Now I'll calculate the completed months between two dates, ignoring days. So you will see my start date and end date contains 24 months and 4 days. It is giving me only 24 months, the completed months. Now, similarly for the days, D. Alternatively, for difference in days, you can simply difference between the date using the cell reference only. But for completed years or completed months, there is no formula which is available in Excel or other than dated. Then suppose you wanted to calculate the number of days after completing a month or after completing a year. I am saying in this example here it is 24 months, or you can say 2 years and 4 days. So I only wanted to calculate the days after a year or after a month. So the unit is MD. 4 days after completing a month. Then I wanted to calculate number of months ignoring days. After a couple of years, there are certain months which have been completed. So I just only wanted to calculate what are the months after completing a year. Two months. So this is 2 years, 2 months and 15 days. It is giving me only 2 months. Then at the last, number of days ignoring years. So basically, after completing a year, it is giving me number. Sachin ji. हेलो हाँ सचिन जी जी शोर थोड़ा सा ना पार्टिसिपेंट्स का आ रहा है कि आप हिंदी में यूज कर लीजिए सो दैट विल बी बेटर. तो बेसिकली नंबर ऑफ डेज में क्या होगा, इसमें हम लोगों को क्या होगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग ए ईयर हम लोगों के डेज कितने आते हैं, वो ये डेटेड फॉर्मूला यूज हमें इंफॉर्मेशन देता है. तो इफ विल से इन दो डेट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, 2 months and 2 days. Any question on dated if? सचिन जी आप कैरी ऑन कर सकते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे. So dated if gives me number of completed years, number of completed months, number of days ignoring months and years, number of months ignoring days and years, and number of days ignoring years. तो जब आपको ग्रेचुटी कैलकुलेशन के लिए या किसी भी ऐसे completed months या completed years कैलकुलेट करने की नीड होती है, तो you can use the dated if function. Then there comes a two function EO month and E date. ऐसा कई बार होता है कि हम लोगों को डेट चाहिए होती है आफ्टर मंथ्स. इट कैन बी एंड डेट. तो अगर आप सैप यूज कर रहे हैं या मंथ्स बेस्ड लाइफ यूज कर रहे हैं, तो यू वांटेड टू कैलकुलेट द एंड डेट बेस्ड ऑन योर स्टार्ट डेट. तो हाउ यू कैलकुलेट द एंड डेट? तो एक फंक्शन होता है ईओ मंथ एंड ई डेट. तो लेट्स यूज बोथ द फंक्शन एंड यू जस्ट सी कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ईओ मंथ और ई डेट. Start date, months. Months can be negative or positive.
I audible to you? So Sachin ji, am I audible to you? formula is simple. EO month, start date, and the number of months. Sachin ji, E am I date, audible to you? start month, start date, and number of months. So basically, what is the difference between EO month सचिन जी and E date? सचिन वरुण जी जी, सचिन जी को थोड़ा सा ना, थोड़ा पार्टिसिपेंट्स का रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा स्लो चलें। Okay. अच्छा थोड़ा ठीक पास चल रहे हैं, थोड़ा उनको ट्रैक करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हल्का सा स्लो कर लें, हल्का सा, ठीक है? श्योर श्योर हम जैसे बुजुर्ग आदमी देख रहे हैं साथ साथ, ठीक है? नहीं नहीं ठीक है सचिन जी थोड़ा सा आप स्लो थोड़ा स्लो कर लीजिए So basically, EO month, you will say it ask me for the start date, then the number of months. थोड़ा हिंदी में भी रखें सचिन जी। ठीक है। So हम लोगों को बेसिकली EO मंथ में स्टार्ट डेट यूज करना है और नंबर ऑफ मंथ्स देने हैं कि हम नंबर ऑफ कि कितने दिन के बाद क्या डेट होगी। तो अगर मैं कहूँ 30 मार्च, तो आई वांटेड टू नो कि एक महीने के बाद क्या डेट होगी, तो आई यूज EO मंथ। एक डिफरेंस है, आई जस्ट वांटेड टू शो कि इफ आई एम यूजिंग दी ई डेट, अगर मैं ई डेट और EO मंथ यूज कर रहा हूँ, डिफरेंस क्या है दोनों में। ई डेट हमें देता है एग्जैक्ट आफ्टर दिस मंथ, जो मैंने नंबर ऑफ मंथ स्पेसिफाई किए हैं क्या डेट होगी। इफ आई एम सेइंग 15th of Feb, तो व्हाट विल बी माय डेट आफ्टर 3 months, तो 3 महीने का मेरी डेट होगी 15 मई। EO मंथ क्या देता है कि आफ्टर 3 months जो भी मंथ चाहे उसकी मुझे लास्ट 15 Feb आफ्टर 3 months, EO मंथ में इट इज गिविंग मी 31st of May। 15 Feb में 3 महीने के बाद की मुझे डेट देवाई 31 मई, क्योंकि मई चल रहा होगा 3 महीने के बाद। अगर मैं ई डेट देखूं तो इट विल गिव मी सेम डेट 15 Feb 3 महीने 15 मई। सो योर मंथ कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस में भी हो सकता है माइनस में हो सकता है। माइनस का मतलब है मैं कह रहा हूं कि एक महीने पहले क्या डेट होनी चाहिए। तो इफ आई एम कैलकुलेटिंग कि अगर टीडीएस इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन कर रहा हूं या ड्यू डेट मुझे कैलकुलेशन करनी है इस मंथ के लास्ट के 7 डेज प्लस, आई कैन सिंपली यूज माय EO मंथ कि जो भी डेट ऑफ डिडक्शन है EO लास्ट डे के 7 डेज वाला मेरी ड्यू डेट है, तो ये EO मंथ है। और ई डेट में मुझे सेम देता है। अगेन आई एम सेइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि ई क्या फंक्शन मुझे क्या आउटपुट देता है। तो इफ यू विल सी ई डेट मुझे सेम डेट दे रहा है। इफ आई वांटेड टू कैलकुलेट द एंड डेट, मुझे किसी की एंड डेट कैलकुलेट करनी है तो उसका एंड डेट जो होगा एक दिन पहले होगा, तो आई सिंपली -1। नाउ इट इज माय एंड डेट। 3 महीने के बाद की एंड डेट है 15 Feb से लेके 14 मई तक। So whenever you wanted to calculate any date specified on months, क्योंकि ऑर्डिनरली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कोई मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी मंथ में 31 डेज होते हैं। So I can simply not put formula कि +30 या +31, Feb में 21 डेज होते हैं, but using this function it automatically identifies कि बीच में आपका 30 डेज है, 31 डे है, और ये आपको एंड डेट दे देता है बेस्ड ऑन दी मंथ्स। तो -1 30th March, it is giving me 28 Feb, 15 Feb, it is giving me 31st May. If I'll say -6, तो 15 Feb 19 is it giving me 31st August. बेसिकली जो भी महीना चल रहा होगा उसके लास्ट डे की डेट देता है EO month, and E date will give the same date. So if I'll say E date, तो 30th March 19 will give 30th April 19, 30th March 19 will give me -1, will give me 28 Feb, 15 Feb will give me after 3 months 14th May. 15th May देगा I just -1, so 15 Feb -6 months it will give me 15th of August. 18 months 15 September 20, 5th of July after 24 months, basically 2 years, 5th of July 2020. So this is the EO month and E date. Next, move to our next function. It is really clear, EO month and E date, simple function. So let's move to our next function.
net working days. So whenever you wanted to calculate the difference, calculate the working days between two dates, so you will use, there is a function in Excel, net working days, net work days. (261). So net working days basically or by default takes Saturday and Sunday as a weekend. So if we'll say I just selected the entire year start date and end date and I entered it, it is giving me 261. Why? Because Saturday Sunday is being assumed by Excel that both the days are weekend days. So लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं होता. इंडिया में तो संडे. सचिन जी मैं इंटरप्ट करूंगा और पैनल और मैम ऑडियंस की रिक्वेस्ट आ रही है और थोड़ा स्लो कर दीजिए. अच्छा और स्लो. हाँ और बड़ा डिटेल में फार्मूलाज को बताइए थोड़ा, है ना, जिससे कि पार्टिसिपेंट्स को क्लियर हो जाए. ठीक है जी प्लीज. तो नेट वर्किंग डेज कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली जब हम स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में किसी भी दो डेट के बीच में हमें वर्किंग डेट चाहिए होता है. वो स्टार्ट डेट एंड डेट आपकी मंथली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, एंटायर ईयर की भी हो सकती है. तो जब मुझे किसी दो डेट के बीच में वर्किंग डेज कैलकुलेट करने होते हैं तो आई विल यूज द नेट वर्क डेज. So in this example, we have 1st of Jan, 31st of December. I am using net working days. इसने मुझे सबसे पहले पूछा स्टार्ट डेट, देन एंड डेट, holiday. Now for now, just ignore the holidays, and I'm simply pressing enter. So it is giving me 261. ये मुझे 261 दे रहा है. 261 क्यों दे रहा है? क्योंकि इस बाय डिफॉल्ट नेटवर्क डेज में सैटरडे और संडे अज्यूम्स एज अ वीकेंड. बेसिकली कि सैटरडे संडे आपको ऑफ रहता है, बाय डिफॉल्ट ये उसको अज्यूम करता है नेटवर्किंग डेज एंड आपको नेटवर्किंग डेज दे देगा बिटवीन टू डेट्स. सपोज आपके पास एक वीकेंड एक लिस्ट है, हॉलीडेज की लिस्ट कि इस दिन आपका हॉलीडे होता है. तो हाउ यू विल कैलकुलेट दी वर्किंग डेज? सेम फंक्शन नेट वर्किंग डेज, स्टार्ट डेट, end date, and now you will select your holidays. So I will select the list of my holidays, bracket close, enter. तो अब मुझे इन्हें 243 है. 243 basically means it excludes the weekends, Saturday and Sunday plus these holidays. तो इस साल में इस हॉलीडेज को मिला के और सैटरडे संडे के अलावा मेरे पास 243 वर्किंग डेज है. So अभी मुझे क्या था वीकेंड. सपोज यू वांटेड टू कैलकुलेट कि भाई मैं इंडिया में तो जैसे मैंने बोला कि सैटरडे संडे बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन होती है या एमएनसीज में सैटरडे संडे ऑफ होता है. लेकिन अगर हमारे पार्टनर फर्म्स हैं या कोई भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो उसमें आइदर सैटरडे संडे बंद होता है या हो सकता है फ्राइडे बंद हो या मंडे बंद हो. तो एक्सेल कीप्स ऑन इवॉल्विंग. पहले वर्जन में नेटवर्क डेज करके फॉर्मूला था, लेकिन बाद के एक्सेल वर्जन में एक नया फंक्शन आ गया है नेटवर्क डेज डॉट INTL. बेसिकली नेटवर्किंग डेज इंटरनेशनल कि इंटरनेशनली कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं वर्किंग डेज. तो सेम स्टार्ट डेट एंड डेट, बट नाउ इट विल आस्क यू कि यू कैन स्पेसिफाई योर वीकेंड. अब यहाँ पे आप बता सकते हैं एक्सेल को कि मेरी फर्म में या मेरी कंपनी में कौन कौन से दिन वीकेंड है. तो सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे. ये दो दिन का इन्होंने दे दिया. फिर देन इट गिव्स यू ऑप्शन टू सेलेक्ट सिंगल डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे. तो यू कैन सेलेक्ट योर वीकेंड. आप अपना वीकेंड सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें कि ये पर्टिकुलर दिन मेरा वीकेंड होता है और इस दिन मेरी छुट्टी रहती है. तो आई विल सेलेक्ट द वीकेंड. हाउ यू कैन सेलेक्ट? आपको सिंपल कर्सर मूव करके यू हैव टू सेलेक्ट द टैब, comma, then it is asking me for the list of holidays.
7. I can change my date. It is giving me now 290. 290 क्यों? क्योंकि अब इसने अपनी कैलकुलेशन में सिर्फ संडे को एज अ वीकेंड लिया। मंडे ट्यूसडे लेते हैं तो ये डिफरेंस होगा। सिमिलरली इफ यू वांटेड टू कैलकुलेट, आपको मंथली कैलकुलेशन यूज करनी है, तो यू विल सी मैंने यहाँ पे एक सिंपल यूज किया है ईओ मंथ। यहाँ पे मेरी डेट्स हैं, यहाँ पे मैंने ईओ मंथ से अपना एक फॉर्मूले से सिंपल इसकी एंड डेट कैलकुलेट कर दी है। मुझे इसके बीच के बेसिकली आई वांटेड टू कैलकुलेट माय वर्किंग डेज मंथली, so I'll use the net working days international, start date, end date, weekend, Sunday only, then my holiday list 24। बेसिकली हम एक्सेल में कुछ भी कॉपी पेस्ट करते हैं ना, अगर मैंने कुछ भी उसके रेफरेंसेस दिए हैं सर्टेन ऑफ रेंजेस, तो देयर इज अ फीचर इन एक्सेल कॉल्ड फिक्सिंग ऑफ रेंजेस ऑफ सेल। बेसिकली व्हाट इट आई मीन कि जब भी मैं सेल में कोई फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैंने कोई उसका रेफरेंस दे दिया, तो जब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या शिफ्टेड, ये G3 था, आई कॉपी पेस्ट, इट कम्स टू G4। Similarly, when I'll copy paste this formula, you will see मेरी जो हॉलीडेज की लिस्ट है ना, ये ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो गई। बट आई वांटेड कि जैसे ही मैं ये अपना फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूं, मेरी ये वाली जो रेंज है ये फिक्स रहे। तो फॉर फिक्सिंग दिस टेबल वी यूज द फंक्शन फॉर की। तो how I can identify, हम लोग को पता क्या चलता है कि something is fixed and something is dynamic, तो डॉलर साइन होता है उसके आगे लगा हुआ। तो if I'm thinking $i $2 $i $28, तो बेसिकली it means कि मेरी टेबल जो है फिक्स है। now my references are not moving, you will see लास्ट तक मेरी ये टेबल रेंज और मैं ये चेंज हो गया, दिस इज चेंजिंग बट टेबल इज नॉट चेंजिंग। तो बाय नेट वर्किंग डेज आई कैन कैलकुलेट माय मंथली वर्किंग डेज इन अ मंथ। तो डिफरेंस यू अंडरस्टैंड नेट वर्किंग डेज और नेट वर्किंग इंटरनेशनल में। नेट वर्किंग डेज में बाय डिफॉल्ट सैटरडे संडे इज अ वीक। नेट वर्किंग इंटरनेशनल में यू कैन स्पेसिफाई योर वीकेंड। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास वीकेंड की, विच यू कैन सेलेक्ट। आई गेस नेट वर्किंग डेज आप सब लोगों को क्लियर होगा। We will take all your queries at the last of the webinar. So if you have any query with regards to datative, EDATE, networking dates, we'll take up the queries. So now come to text function. So basically wanted to put any date. एक डेट आपने पुट कर दी, लेकिन आप चाहते हैं कि उसका डायनेमिक व्यू मिले आपको विद रेफरेंस टू सिंगल सेल। एक सेल में मैंने डेट डालने पर आप चाहते हो कि वो अलग अलग जगह पे मैं उसको अलग अलग डायनेमिकली देख सकता हूँ। तो there is a function called text by which your date can be converted into any form. How I can use text function? Give the value of the date, comma, then you have to define your format. So whatever format you have to define, जो भी format आपको define करना है, it should be in double inverted commas. dd.mm.yy can be dd
MMYY. Can be DD MMYY. You wanted कि क्या डे है इस दिन में, DD कॉमा month कॉमा date कॉमा same date, but you can dynamically view your date using the text function. कैसे काम करता है? Basically when you are using the single D, तो ये आपको देता है single digit में day. When you are using double D, it will give you double digit day. When you use triple D, it gives you the day of that date. Monday, Tuesday, so it will give you the 3 characters. If you will use 4D, it will give you the entire day. Similarly for month, single digit, double digit. If you do 3 times M, so it will give you 3 digit month. If you will use 4 times, it will give you a complete month. For year, so what you can use in date, D, double D, triple D, 4 times D. For months, you can use single M, double M, triple M, double M, double M, Y, double Y, triple Y. You can use the is any number of times. So text function can be used to customize your date format. Secondly, mostly we use the text function for customization in date only. Date के लिए हम अपना text function use कर सकते हैं, but हम currency भी customize कर सकते हैं, number format भी customize कर सकते हैं, और हम statement भी बना सकते हैं using this text function. कैसे? हम जनरली जो यूज करते हैं हम लोग, सिर्फ अगर कहीं पे हमें देना होता है, हम जनरली टेक्स्ट फंक्शन को इसलिए यूज करते हैं टू कन्वर्ट आवर डेट इनटू टेक्स्ट एंड इनटू mm.yy फॉर्मेट. जीएसटी या इसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन को मोस्टली इसलिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके और भी डायनामिकली यूज है डेट को मॉडिफाई करने के लिए. सेकेंड है करेंसी को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं. तो यू कैन डिफाइन योर करेंसी और इट कैन बी एनी नंबर्स. So I put my currency, same text function value, double inverted comma start. Basically now here you have to understand the two things. One is hash function and nil value. So nil value number of digits. So if I'll say कि मुझे minimum 2 digit चाहिए whenever I am reflecting any currency, so I'll use 2 times nil value then hash. Even if my there is only single digit, it is showing me double digit. Or you wanted to say कि you minimum wanted 3 digit to be displayed. One, 2, 40, 30. So it is showing me minimum 3 digits because 3 times I put the nil value, then I put hash. It can be for number. Put any bill number
is there. So you want it to mandatorily show in 3 digit or 4 digit. And if you wanted to say कि minimum this number of digit, and then if digit is been there, then only being showed, then you will use the hash key. कि आपकी अगर digit है, तब आप you wanted कि वो show करे, you will use the hash. I'll specify 2 digit. Now I am converting into a only single digit. So you can convert your any currency or any number into your own defined format. ये एक आपका टैक्स है बेसिकली. I'll say phone number है. तो what I change is कि अगर ये 7 digit है, 7 digit से less है, तो I wanted my format to be in this. If it exceed 7 digit, so I wanted my numerical phone number to be viewed like this. So function date text, again my value reference. I'll simply specify this condition. तो टैक्स के अंदर आपको अगर कोई क्राइटेरिया देना है, it should be in square brackets. तो आई एम सेइंग अगर लेस देन 7 digit है, तो give me this format, otherwise give me this format. तो टैक्स में you can define format based on the criteria as well. कि अगर ये condition है, तो give me this, otherwise this. Like I already explained you, hash हम यूज कर रहे हैं कि जब नंबर होगा तभी हमें दिखेगा, नंबर नहीं होगा तो हमें नहीं दिखेगा. सेम कैन बी यूज फॉर परसेंटेज. अगर मैं परसेंटेज यूज नहीं करता हूं, तो इफ आई रेफरेंस इज one to 5, so I can specify sales increase by 'So simply I converted my number into percentage form. And like I said, you can add your statement also. So anything you wanted to add any statement with a formula, you simply has to use the double inverted commas and AND function. So using text function, you can convert your date into multiple display. Using text function, you can specify the currency format or number format. You can specify the formatting based on your condition, or you can either use it or convert a value into a percentage. सिंगल डी से आपका सिंगल डिजिट में डेट आती है, डबल डी से डबल डिजिट में, ट्रिपल डी से इट गिव्स यू अ डे, एंड 4 times डी इट गिव्स यू अ एंटायर डे इन कंप्लीट. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे.
Same goes with the month. So I guess text is now clear. We'll move ahead with a concat and text join. हम लोग जनरली concatenate यूज करते हैं, बट इसका डिमेरिट क्या है? यू हैव टू सेलेक्ट द सेल वन बाय वन. आपको एक एक करके ये सेल सेलेक्ट करना पड़ता है. लेकिन इफ विल यूज दी कॉन्कैटिनेट, आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है. इफ विल डू लाइक दिस, यानी एक एक सेल में इंफॉर्मेशन नहीं देता, अलग अलग देगा. सो तो अगर मैं सिर्फ सेल रेफरेंस सेलेक्ट करके अपना ज्वाइन करना हो, तो मेरी रेंज का साइज बहुत ज्यादा है और मुझे उसे मतलब कंसोलिडेट करना है डेटा, तो आई विल यूज दी कॉनकैट फंक्शन. Concat, CONCAT, then I'll just give the entire range I selected, enter. Again concat, my values, enter. Or I can just simply copy paste my formula. So again I said Excel keeps on evolving. आपने देखा कि मेरा कंसोलिडेट तो कर दिया, बट आई वांटेड कि आई एम एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या कंसोलिडेट किया है सिंगल सेल में. तो आई वांटेड ए पुट ए डिलिमिनेटर. मैं इनके बीच में एक डिलिमिनेटर चाहता हूँ, कोई स्पेस या कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क चाहता हूँ, जिससे मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि अलग अलग सेल्स का डेटा. तो फॉर दैट देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड टेक्स्ट ज्वाइन. टेक्स्ट ज्वाइन, again you have to define your delimiter. So I told you कि आपको कुछ भी define करना है Excel में, you have to put that in double inverted commas. So I'll use space as my delimiter, double inverted close, ignore empty cells. Basically अगर कोई empty है in between तो वो उसको ignore कर देगा. Then your data. Space के अलावा और you can put exclamation mark. You wanted to put comma, you can put comma. You wanted to be semicolon. Or you wanted to use semicolon plus space. Usability कहाँ पे है text join की? Suppose you have a list mail, बहुत सारी मेल की लिस्ट है आपके पास. यू वांटेड टू कंसोलिडेट योर मेल्स सो दैट यू कैन डू द बल्क ईमेलिंग यूजिंग द टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन एंड colon and space. You can consolidate your emails. So there is one question ki I can use vertically this selection as well as horizontally. Text join again, delimiter space, उस पे delimiter हो सकता है, but it should be in inverted commas. Ignore empty cells. Enter. Concat, in concatenate we have to use single each cell every time. In concat you can give the entire ranges to consolidate data. In text join you can also input your delimiter. So that's the difference between all the three functions. So I get concat and text join is being clear. We'll now move to a filter and advanced filter. Filter कैसे यूज करते हैं? Similar. हमारे पास एक डेटा रेंज है. I wanted to use the filter. Either I can use the shortcut Alt A T, or if you know your filter is in data column. So I'll go to data filter.
जनरली क्या फेस करते हैं हम while यूजिंग द फिल्टर? कई बार हम लोग फिल्टर लगाते हैं, तो आपने देखा मेरा फिल्टर से जो अपर कॉलम है मेरी टेबल की वही फिल्टर लगा। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली व्हेन वी यूज द फिल्टर, जब हम लोग फिल्टर लगाते हैं, जो भी कंटिन्यूअस डेटा होता है ना, जहाँ पे भी आपका सेल होता है, वो फिल्टर वहां तक लगता है। तो अगर आपका एक भी गैप आ गया ना, तो वो फिल्टर का ब्रेक हो जाता है। तो इफ यू वांटेड, आपको पता है कि आपके डेटा के बीच में गैप है और यू वांटेड टू यूज द फिल्टर जहां तक आपका डेटा है, तो यू विल सेलेक्ट योर टेबल जहां तक आपका लास्ट में डेटा है, देन यू विल सेलेक्ट ऑन फिल्टर। अब जो गैप था वो भी कवर्ड हो गया फिल्टर में आपके। What else I can do? गैप फिल्टर में I can use, गैप आपने मैन्युअली डिलीट किया क्या? कैसे जी किया? मैनुअली डिलीट किया। थोड़ा सा दोबारा डिलीट करके दिखाएंगे कैसे? एक बार गैप आपने सिलेक्ट किया पहले, मैंने ये सिलेक्ट किया, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल माइनस। हाँ थोड़ा सा ये बताइए, कंट्रोल माइनस से मैनुअली रो कर। ठीक है, लेकिन फिल्टर के अंदर एक सचिन जी एक बात है, जब फिल्टर हमने किया, हाँ जब फिल्टर किया तो उस फिल्टर के अंदर इसका ये जो आपने ब्लैंक्स आइडेंटिफाइड कैसे कर दिए? वो तो ब्लैंक तो टूट जाता फिल्टर उसके बीच में से। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब, आप जी इसको दोबारा करेंगे एक बारी? हाँ मैं फिर से कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोर्ट नॉर्मली जो इशू फेस होता है बेसिक में, कि जब हम फिल्टर लगाते हैं ना, तो अगर एक भी लाइन का गैप होता है ना हमारे डेटा के बीच में, तो वो फिल्टर, मतलब जो मैं जितना गैप तक कर यहाँ होता है, आई यूज माई फिल्टर। ठीक है, तो क्या होगा कि जहाँ पे भी मेरा गैप आ जाएगा ना, उसके बाद फिल्टर नहीं लगता। तो इफ आई एम सेइंग कि यहाँ पे मेरा कर्सर था, यहाँ पे जाके ये ब्रेक, लाइन ब्रेक हो गई बेसिकली, यहाँ पे कोई डेटा नहीं है बीच में, तो जब मैंने फिल्टर पे क्लिक किया तो मेरा डेटा ना इतना ही पार्ट फिल्टर हुआ। ठीक है, आप देखो नीचे नीचे पे फिल्टर नहीं लगा, सिर्फ इसी वाले डेटा पे फिल्टर लगा है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो वही मैं कहूँ, जब आपको पता है कि आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें बीच में गैप है, या आपने फिल्टर लगाया लेकिन नीचे कुछ सम सेल्स जो नीचे के हैं वो फिल्टर में नहीं आए, बिल्कुल ठीक। तो आप क्या कहोगे? आप डेटा सेलेक्ट करोगे जहां तक आपका डेटा है, देन यू विल सेलेक्ट ऑन फिल्टर। ओके, तो फिर आपका जो भी नीचे का भी डेटा है ना जहाँ पे गैप है, that will also be covered in your filter. ओके, क्लियर। ब्लैंक आइडेंटिफाइड करके उनको डिलीट कर देंगे। हाँ, so ये मेरा सिंपल फिल्टर है, और क्या फिल्टर पे यूज कर सकता हूँ मैं? हाँ ठीक। सपोज while doing reconciliation, मैं कुछ कलर कोडिंग कर देता हूँ कि हाँ भाई ये मेरा रिकंसाइल हो गया, ये मेरा रिकंसाइल हो गया। So I can use my filtration based on my color cells. Color coding के बेस पे I can do my filtration. Filter by colors, orange. Okay. So this is the filter. Or alternatively, you can either just select if anything contains pen, so give me filtration based on it. You have to just type it pen. In earlier version, you will not be able to type in this window only. You have to go to your text filters. In your text filter, it gives you options: equals, does not equal, begins with, end with, contains, does not contain, custom filter. In custom filter, you can use more than one criteria, या तो and or, जैसे टैली में हम यूज कर सकते हैं कि दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए बेस्ड ऑन दैट फिल्टर, या सिर्फ एक कंडीशन कोई हो जाए।
सपोज आई एम सेइंग, या तो पेंसिल हो मेरे डेटा में, या फिर मैं कह रहा हूं पेन सेट हो, तो दोनों का डेटा दे दिया। सो दिस इज माय फिल्टर। लेकिन आप देखोगे फिल्टर के उसमें ही मेरे पास एक ऑप्शन होता है एडवांस फिल्टर। हाउ वी कैन यूज द एडवांस फिल्टर इन एक्सेल। एडवांस फिल्टर यूज करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट कॉपी पेस्ट योर हेडिंग टू सम अनदर लोकेशन इन द सेम शीट। एज इट इज मैंने अपनी जो भी मेरे डेटा की हेडिंग्स है, कॉपी पेस्ट दिस। नाउ आई विल गो टू माय एडवांस फिल्टर। इट इज आस्किंग मी फॉर द डेटा। डेटा की रेंज क्या है? ये मेरे डेटा की रेंज है। देन इट इज आस्किंग मी आपकी क्राइटेरिया। तो यू हैव टू सेलेक्ट योर headings with one blank line। कॉन्सेप्ट क्या है अभी बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। सो एडवांस फिल्टर क्या करता है, फिल्टर में आपको वहां पे जाके फिल्टर करना पड़ता है। यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर कॉलम हेडिंग, यू हैव टू सेलेक्ट इट एंड यू हैव टू क्लिक कि मुझे ये चाहिए, और यू कैन स्पेसिफाई द क्राइटेरिया। एडवांस फिल्टर में क्या होता है, मैं सिंपली आई इनपुट माय फिल्टर क्राइटेरिया। जो भी मुझे फिल्टर करना है उसका क्राइटेरिया आई इनपुट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेन, यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये दो क्राइटेरिया मैंने अपने यहाँ पे डाल दिए। नाउ आई यूज एडवांस फिल्टर। दिस इज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड, दिस इज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड। ओके, whatever it contains pen, it give me automatically filtration। इसमें लिख देता हूँ पेंसिल greater than equal to 100। East advanced filter। So you can use your multiple criteria। क्राइटेरिया का एंड पेंसिल भी होना चाहिए, ईस्ट भी होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 भी होना चाहिए। क्लियर फिल्टर। Now I'll say you wanted to use more than one criteria, so only now you have to use the two lines। Like you can select more than one lines, so your blank lines will define your criteria। Now I'll say pencil and binder। It is giving me pencil and binder। पेंसिल का क्राइटेरिया क्या है, पेंसिल एंड शुड बी ग्रेटर देन 10, बाइंडर एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 30। सिंपल। एडवांस फिल्टर में आपका जो भी आपको फिल्टर करना है वो क्राइटेरिया के लिए आपको इसकी हेडिंग्स कॉपी पेस्ट करनी है। ऐसा हो सकता है आपको कंप्लीट हेडिंग्स ही चाहिए, यू वांटेड टू फिल्टर बेस्ड ऑन योर टू हेडिंग्स ओनली, तो आप सिर्फ वो दो हेडिंग कॉपी कीजिए जिसकी आपको फिल्टर करना है। तो दिस इज द एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में आपको कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं।
advanced filter. You want it to your filter data to be copied at some other location. So you will say, you will click on copy to another location. Just specify your location, enter. Okay. तो ये फिल्टर डेटा को आपका यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा. You wanted to copy paste only certain kind of headings, not the complete all columns. आपको all columns copy paste नहीं करने हैं आपके filter data के, लेकिन आपको कुछ column copy paste करने हैं. So copy to another location, select your headings. You can check pencil, there were 2 records. So advanced filter gives me this. एक और फंक्शन होता है यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली. तो बेसिकली अगर आपके डेटाबेस में कोई डुप्लीकेसी है, तो विल से ये मेरे पास एग्जैक्टली डुप्लीकेट है और यहाँ पे मेरे पास आइटम्स कितने, लाइन आइटम्स कितने, 44. तो I'll say advanced filter, range criteria, copy to another location, unique record. So here you will say these are 43 because it automatically deleted this duplicacy. This is the advanced filter. Someone asked कि क्या मैं कलर कोडिंग करके फिल्टर कर सकता हूँ? नो, कलर कोडिंग के आपको नॉर्मल फिल्टर यूज करना पड़ेगा. आप यहाँ पे कलर डिफाइन कर देंगे तो आपका एडवांस फिल्टर काम नहीं करेगा. सचिन जी, तो जी एडवांस फिल्टर के बाद हम सारे क्वेश्चन आंसर्स ले लें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं, 11 क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, हमारे पास डेटा क्लींसिंग वाले फंक्शन बचते हैं, वो हम इसके बाद में ले लेते हैं. समय लगेगा. We have 10 minutes to look into that. वरुण जी, are you there? तो जो क्वेश्चंस है एक बार आप पिकअप कर लिए या फिर सचिन जी आप ही ले लीजिए. हाँ सचिन जी आप ऑन कर लीजिए. सो अभी हम एक बार थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लें एक बार ना. ठीक है. हाँ जी. सचिन जी एक आया है, प्लीज रिपीट द डेट ओनली, फॉर द डेट ओनली. डेट ओनली वाली शीट जो है टेक्स्ट वाला है क्या, ये वाला है क्या? जो फर्स्ट वाली थी ना डेट्स, हाँ डालने ये एक बार, हाँ डेटेड वाला ये एक बार. सो बेसिकली आई विल टेल यू कि डेटेड कुछ फंक्शन जो एक्सेल में होते हैं, मोस्टली एक्सेल में फंक्शंस होते हैं, तब आप उनको टाइप करते हो, वो डिफाइन करता है कि आपको डेट इसमें क्या यूज करना है. तो इफ आई विल से वी लुकअप, तो लुकअप वैल्यू. लेकिन डेटेड इफ एक ऐसा फंक्शन है एक्सेल में जो एक्सेल में है तो, लेकिन इट इज बीन हिडन है. आप देखो मैंने डेटेड इफ लिखा, ठीक है, लेकिन इट इज नॉट गिविंग मी इंडिकेशन कि ये डेटेड इफ का फंक्शन वी कैन यूज इन एक्सेल. तो डेटेड इफ वी कैन यूज इन एक्सेल, उसके कुछ कोड्स हैं. कोड, यू कैन से कोड और यू कैन से क्राइटेरिया यूनिट्स. तो अगर मुझे किसी दो डेट के बीच में कंप्लीटेड ईयर्स निकालने हैं, ये एग्जैक्टली कंप्लीटेड ईयर्स हो सकता है, दो डेट के बीच का डिफरेंस हो 2 साल 2 महीने 2 दिन, तो मुझे 2 महीने नहीं चाहिए या 2 दिन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कितने साल कंप्लीट हो गए उसका डिफरेंस चाहिए. तो आई यूज डेटेड इफ कॉमा स्टार्ट डेट
comma and date comma then double inverted commas I'll use my unit. तो वो मैंने डिफाइन कर दिया आपके लिए, यही यूनिट्स हैं डेटेड इफ के लिए. अगर आपको कंप्लीटेड ईयर्स निकालने हैं तो उसकी यूनिट है y, अगर कंप्लीटेड मंथ्स निकालने हैं तो उसकी यूनिट है m, नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस निकालना है तो उसका है d. बाय डिफॉल्ट आप इसको सिंपल डिफरेंस से भी निकाल सकते हो डेज का डिफरेंस, लेकिन डेटेड इफ में भी आपके पास ऑप्शन है. फिर देन इट गिव्स यू कि आफ्टर कंप्लीटिंग कि मेरे ईयर्स और मंथ कंप्लीट करने के बाद 2 साल 2 महीने 2 दिन, 2 साल इग्नोर 2 महीने इग्नोर, गिव मी 2 दिन. सो 1 ईयर 4 ईयर. तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला है एमडी. तो स्टार्ट डेट एंड डेट एमडी, ठीक है. देन देयर इज स्टार्ट डेट एंड डेट. आई वांटेड नंबर ऑफ मंथ इग्नोरिंग डेज एंड ईयर्स. 2 साल 3 महीने 5 दिन. I don't want 5 days, I don't want 2 years. 2 साल नहीं चाहिए मुझे, 5 दिन चाहिए. मुझे ये चाहिए कि साल कंप्लीट होने के बाद कितने महीने कंप्लीट हो गए हैं. अगर कुछ दिन कंप्लीट हो गए हैं तो मुझे दिन नहीं चाहिए, तो आई यूज ym. और ऑल्टरनेटली आप चाहते हैं कि एक साल 5 महीने हो गए, 1 साल 5 महीने 3 दिन, तो मुझे 1 साल के बाद कितने दिन हो गए. यू कन्वर्ट योर मंथ्स इनटू डेज ओनली, कि 5 महीने 2 दिन तो टोटल कितने दिन हो गए, तो यू विल यूज yd. इसका आप कंबाइंड फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है. तो इफ आई से डेटेड इफ I'll use and double inverted commas months, then and, then I'll again use dated if, start date and date. Here I will use only days, bracket close, then again and I'll use now days. So you can combine use this formula to have the exact age. You can say you wanted to display your age, your life in exact days. So you can calculate the completed years, completed months, completed days, and combine it with using the days and months text formula. Dated ifs. थैंक यू सचिन जी. अब मैं नेक्स्ट क्वेरी बताता हूँ सचिन जी. सो एक पूछ रहे हैं कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं एक्सेल का. This is the latest version of a 365. So instead I prefer कि instead of buying any मतलब particular Excel version 2016 या 2013 से अच्छा you buy the subscription. 300-500 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है और मतलब अप टू 6 यूजर्स. तो मंथली आपको मतलब हार्डली 100-150 पे होता है एंड यू विल गेट दी फुल वर्जन, लेटेस्ट वर्जन. कोई लेटेस्ट वर्जन इसमें अपडेट होगा तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट दी लेटेस्ट वर्जन ओनली. So you take the Microsoft subscription instead of buying any particular Excel version, Microsoft Office. 365 है मेरा लेटेस्ट. थैंक यू सचिन जी. सचिन जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. Why you use hash 3 times? वो डेट वाले में आपने हैश यूज किया था 3 टाइम. यू कैन यूज 1 टाइम आल्सो. हैश से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. हैश में 2 टाइम्स इसलिए यूज करता हूँ इफ आई हैव टू स्पेसिफाई कि मुझे कितने के बाद अपना कॉमा चाहिए, तो देयर आई कैन यूज. हैश का मैंने आपको कंसेप्ट. हैश मींस इफ देयर विल बी नो वैल्यू it will not display your value. अगर आप nil value यूज करते हो तो even if there is no value it will display your value. Hope this will clarify the issues. Next है formula to add 180 days to a specific date. तो उसके लिए तो simply you can use date plus 180 days.
डेज कैलकुलेशन तो इज इजी, आपको मंथ जहाँ पे कैलकुलेट करना हो रहा है आफ्टर बेस्ड ऑन डेट. तो फॉर डेज तो इफ विल से 1st April 18 or you can say 20, so you wanted to add 180 days, so simply add 180. Perfect, Sachin ji. What for the number format it is used? ये आपका बिल आप देखो, आपको मैं वही कहूँ, इफ यू हैव डिजाइन समथिंग यूटिलिटी आउट ऑफ एक्सेल, जो हमारा जैसे लास्ट टॉपिक है कि हम लोग वी आर सेइंग कि जो भी हम 3 दिन में लर्न करेंगे, तो विल शो कि हाउ यू कैन यूज दी सिंपल पर्सन टू ऑटोमेट योर टास्क. जैसे लास्ट डे पे हम लोग है कि बैलेंस शीट यूटिलाइजेशन की ट्रायल बैलेंस से हम अपनी बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं. सो सिमिलरली अगर मैं किसी इनवॉइसिंग यूटिलिटी पे काम कर रहा हूँ अपनी एक्सेल की, तो आई वांटेड कि मिनिमम देयर शुड बी 3 डिजिट. Thank you, Sachin ji. Next है how to add dollar in the formula after selection in multiple cells. मींस यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा. चलो इनसे 1 to 1 में देख लेंगे फिर ये वाला कि एग्जैक्ट इनकी रिक्वायरमेंट क्या है. सो अब है if we want to keep separate by concat formula, separately by concat formula. तो सेपरेट तो नहीं होता कॉन्कैट में, आई थिंक वो कह रहे हैं कॉन्कैट से सेपरेट कर सकते हैं. हाँ, यानी आपको कॉन्कैट सेपरेटली यूज करना है तो आप कॉन्कैटिनेट यूज सकते हो या कॉन्कैट भी यूज कर सकते हो, इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हो, और यू कैन सेलेक्ट द एंटायर रेंज. ओके, थैंक यू सचिन जी. नेक्स्ट है हाउ कैन वी फाइंड देयर इज अ गैप इन द रो इन केस बिग डेटा फिल्ट्रेशन. हाउ कैन वी फाइंड देयर इज अ गैप इन अ रो? उसके लिए यूटिलिटी है, वी विल एक्सप्लेन इन अ कमिंग वर्कशॉप. ये सब यूटिलिटीज करके वो आपको पता है, तो उसमें आपके काफी सारे मतलब बिल्ट इन मैक्रोज हैं, तो वी विल एक्सप्लेन यू, ये उसमें कवर्ड है. तो आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेरी राइट नाउ. श्योर 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 सचिन जी. और तो ऐसे करके जो भी आपकी ये बिग डेटा को रिलेटेड जो भी आपकी वर्किंग रहती है, तो इट विल हेल्प यू इन डूइंग दैट थिंग इन अ क्लिक ऑफ अ. एक आ रहा है, आई थिंक ये थोड़ा डिफरेंशिएट समझना चाह रहे हैं कॉन्कैट और टेक्स्ट जॉइन में. तो कॉन्कैट में आई टोल्ड यू कि कॉन्कैट में इट विल कंसोलिडेट योर डेटा एज इट इज, कोई डिफरेंट कॉन्कैट, ठीक है. एबीसीडी जो भी आप इसमें सेलेक्ट होगे, इट विल कंसोलिडेट योर डेटा. टेक्स्ट जॉइन में क्या डिफरेंस है, यू कैन गिव सम डिलिमिनेटर और यू कैन से सम आइडेंटिफिकेशन मार्क. जब आप डेटा का कंसोलिडेशन कर रहे हो, तो यू वांटेड टू पुट सम स्पेस, सम कॉमा या एनीथिंग यू वांटेड टू बी पुट, कि डेटा कंसोलिडेट हो रहा है सिंगल सेल में, लेकिन मुझे कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क मिल जाए. तो अगर मैं कहूँ कि ABCDE है, आई वांटेड कि इन सब के बीच में डेटा एक सेल में आ जाए, लेकिन जस्ट पुट 1 कॉमा. थैंक यू सचिन जी. जी, थैंक यू फॉर गिविंग ऑल द आंसर टू आवर क्वेरीज. और इसमें कई क्वेरीज YouTube पे भी है, बिकॉज अवर चैनल इज आल्सो लाइव ऑन YouTube. तो आई होप कि हम इस पूरी चैट को आपको फॉरवर्ड कर देंगे. तो कुछ इसमें नेक्स्ट सेशन जो कल का सेशन होगा, उसमें कुछ हम उन क्वेरीज को 5 मिनट लगा के आंसर करेंगे. वरुण जी. हाँ ठीक है सर, श्योर. Tomorrow, what should be the time for tomorrow? Because today, due to some technical reasons, that the session cannot be started at the time. It's at the fixed time is 6:30. So tomorrow we will going to start at 6:30. Yes sir, we can do this. And tomorrow this again next session will start at 6:30, and the same link will be used for. That link will be used for the tomorrow as well, and we also will have a YouTube live as well.
So it doesn't mean YouTube live. We will take care of the next 15 minutes. We will go for the only for question answers. Sure. Manmohan ji, are you there? Yeah. Manmohan ji, over to you. Yeah, thank you, Manpreet ji. And it is really indeed a pleasure to have Sachin ji with us on this Excel class. सचिन जी, आपने बड़े अच्छे से डिटेल में फार्मूलाज को बताया है, जितने भी फार्मूलाज आपने आज बताए हैं. बस सभी पार्टिसिपेंट्स की रिपीटेड रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा स्लो चलें, हिंदी में चलें, फार्मूला को पूरा एलोबरेट कर लें. और मैं समझता हूं कि एज पर द फीडबैक आज कितने लोग ज्वाइन करना चाहते थे, कुछ लोगों को लिंक की वजह से कहीं कुछ थोड़ी सी दिक्कत आई, तो हो सकता है हमें आज वाला सेशन रिपीट करना पड़ेगा, तो फिर कभी कर लेंगे. और वी आर थैंकफुल टू यू कि आपने ये सेशन लिया है. एंड आई थैंक्स ऑल द पार्टिसिपेंट वेदर ऑन यूट्यूब और हेयर टू ज्वाइन. और सभी पार्टिसिपेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी फोर्थकमिंग प्रोग्राम्स हैं उनके आपको नोटिफिकेशंस पहुंच जाए तुरंत, जिससे कि आप उनको इजीली ज्वाइन कर सकेंगे. तो वी विल बी प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर प्रोग्राम एज पर योर पैट्रोनेज, जैसा जैसा हमें आपका सपोर्ट मिलता रहेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू टीम CAVM, CA वरुण गुप्ता जी, आपने बड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम को, सीरीज को कंसेप्चुलाइज करने में, सचिन जी के साथ में और डिलीवर करने में. और लास्ट मिनट हैसल्स जो हमें टेक्निकल आई प्लेटफॉर्म की तरफ से, उसको भी आपने मैनेज किया और प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्ट करके सॉल्व किया और नया लिंक जनरेट करके लोगों को दिया इतने शॉर्ट टाइम में. वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू फॉर दिस ऑल्सो. वी हैव विद अस आवर जनरल सेक्रेटरी सुभाष कंबोज जी. हम उनका भी धन्यवाद करते हैं. आज अब उन्हें ज्यादा समय नहीं दे पाए हैं या बात नहीं कर पाए हैं, बट यस, कल हम उनके साथ भी बात करेंगे. मनप्रीत सिंह कपूर जी हमारे वेबिनार कमेटी के कन्वीनर हैं और हमारी सारी वेबिनार्स को कंसेप्चुलाइज करना और उसका काम करते हैं. हम पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है. और बहुत सी टीम पूरा सहयोग कर रही है, काम कर रही है इसके वेबिनार एंड डिजिटलाइजेशन पे. हम बहुत ही जल्दी प्रोफेशनल ऑफिस के डिजिटलाइजेशन के ऊपर हमें क्या काम करना चाहिए उसके ऊपर भी वेबिनार लेकर के आएंगे. तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स वेरी मच फॉर गिविंग अस योर लव एंड अफेक्शन. एंड स्टे होम, स्टे सेफ. अभी भी ओपन कुछ नहीं हुआ है, जितना हम अपने आप को एक्सपोज करेंगे उतना रिस्क बढ़ाएंगे. तो इसलिए स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. ओवर टू मनप्रीत जी. थैंक यू मनमोहन जी, थैंक यू केमका जी, थैंक्स सचिन जी. एंड आज अब क्वेरीज हम थोड़ी कम ले पाए, बट टुमारो वी विल ट्राई की वी विल आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेरीज raised in YouTube as well as in Zoom webinar. And thanks to all participants. Thank you.